شہربانی کی ترتیب کی کتاب پہلے صفحے سے ہم شروع کریں گے۔ شہربانی کی ترتیب کی کتاب۔ خداوند تمہارے ساتھ ہو، ہم دعا مانگیں۔ اے قادر مطلق خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں۔ اپنے روح القدس کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، سننا اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اے عزیزو، ہم آج کے دن ایک بار پھر اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خدا ان کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اس لیے آئے ہم تھوڑی دیر کی خاموشی میں اپنے آپ کو آزمائیں اور خدا کا فضل مانگیں، تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں۔ سب مل کر کہیں گے، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے، ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن نہ راستی سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر، یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر، اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ آمین۔ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ خدا کے اس حکم کے مطابق جو مجھے اس کی کلیسیا کے ذریعے سے ملا، میں باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آپ کو خبر دیتا ہوں اور اعلان سناتا ہوں کہ آپ کے سب گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ ہم خدا کی حمد و تعریف کریں گے۔ گیت نمبر 279 279۔ سرگ سے اٹھے یسوع اگنی سجیون، مجھ کو تو دے یسوع بھرپور جیون۔ سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب۔
हमारी रहनुमाई करें और खुदा उनका शुक्र अदा करें। की गहराई से तेरा शुक्र गुजार आते हैं खुदा इस खूबसूरत सुहाने दिन के लिए तूने हम सबको से जिंदगी और सलाम के लिए बहाने बख्शी। एक दूसरे बात खुदावंद आज के पाक दिन के लिए खुदावंद तेरी हज़ूरी में खास शुक्रगुजारी पेश करती हूँ खुदावंद। अपने बुजुर्ग बिशपदार के लिए खुदावंद जिनको तूने सेहत जिंदगी सलामती में बहाल रखा, उनको खैरियत से खुदावंद अपनी सरजमीन पर वापस लाया, उसके लिए शुक्रगुजार आते हैं। आज के दिन के लिए खुदावंद अपने बंदा के साथ होना, उनको हिकमत और दनाई और अपना जोर बख्शना खुदावंद। उनकी बशरी कमजोरी में खुदावंद उनका साथ हो, ताकि जो पाकरूम की तराई से खुदावंद का नाम हम सबके साथ शेयर करते हैं, उसको खुदावंद हमारे दिलों में तीन गुनाह नहीं, सात गुनाह नहीं, बल्कि सौ गुनाह फैलाने का बायस हो। इस वजह खुदावंद तारीख साहब के लिए, एरिया के लिए, पूरी कलीसिया के लिए खुदावंद तेरे नाम में शुक्रगुजारी पेश करते हैं खुदावंद। आज जब हम सब इकट्ठे हैं खुदावंद पूरे इबादत की तरतीब में खुदावंद हमारे साथ होना, हमारा अपनी सताइश करना है खुदावंद, गीत गाना बजाना तेरे नाम की इज्जत और जलाल के लिए बहुत मुझे पसंद है। शुक्रगुजारी पर खुदावंद इस मिन्नत को यीशु के नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब गीत नंबर 320। जो नौजवान बच्चे हैं वो ऊपर चले जाएं, बुज़ुर्गों को जगह दे दें, नौजवान बच्चे जाएं ऊपर। जो संडे स्कूल के छोटे बच्चे हैं वो संडे स्कूल के लिए जाएंगे। आप जो जवान बच्चे हैं आप ऊपर चले जाए बेटा, और बुज़ुर्गों को जगह दें। इस साइड पे जगह है। गीत नंबर 320। हालेलुया, तारीफ करेंगे।
इबादत में हैं और आज की इस इबादत में हम कुछ हिस्सा डेडिकेट करेंगे मिसेस शांति याकूब गिल जो इंग्लैंड में थी, खुदावंद मिस हो गई। हम उनके ख़ानदान के साथ अफसोस का, मोहब्बत का, प्यार का इजहार करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद उनके पूरे घराने को तसल्ली और इत्मीनान अता फ़रमाए। मास्टर कमरुज़्ज़मा के लिए, उनके पूरे घराने के लिए दुआ खैर करते हैं और उनके साथ मोहब्बत का और प्यार का, अफसोस का इजहार करते हैं। हमारे बहुत ही पुराने मेंबर थे भाई सुबह मसीह, उनकी मिसेस खुदावंद मिस हो गई। उनका बेटा मंजूर जहाँ चर्च में है, हम उनके साथ भी अफसोस का इजहार करते और शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने उन्हें लंबी ज़िंदगी दी। वो खुदावंद मिस हो गई हैं। अब ख़ानदान के लोगों के लिए दुआ है कि वो खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, इसलिए कि बयान आप बेशक हमारा तल्लक रिश्ता कितना भी क्यों ना गहरा हो, हम किसी की ज़िंदगी में एक घड़ी, एक लम्हा भी इजाफ़ा नहीं कर सकते। ज़िंदगी पर रूह पर सिर्फ़ और सिर्फ खुदा का अख्तियार है, इसलिए मुझे और आपको खुदावंद का शुक्र अदा करना है। हम अपने भाई अर्नेस्ट जॉन के लिए, भाई गुड्डू हकीम के लिए, मास्टर विलियम जेम्स के लिए, अपने भाई नवीद के लिए, मिस्टर एजाज़ अहमद के लिए जो कैंसर के मरीज़ हैं, मिसेस मार्था इमैनुअल के लिए, भाई नईम बरकत के लिए, पास्टर नवीद सलीम और उनकी पूरी फैमिली के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद अपना शाफी हाथ उनकी तरफ बढ़ाए ताकि वो आने वाले वक्त में सेहत और तंदुरुस्ती में खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकें। हम दुआ मांगें। ख़वातीन में से कोई भी दुआ में रहनुमाई करे। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं दिल की गहराइयों से। खुदावंद ने हमें ये फजल बख्शा कि आज हम फिर से तेरे घर में आए और खुदावंद तेरा शुक्र करें, तेरी हमको सना करें, तेरी मदद सराई करते हुए खुदावंद हम तेरी बारगाहों में हाजिर हुए हैं। खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने ख़ानदानों को सलामती से रखा है। आए खुदा कलीसिया के एक ख़ानदान के लिए बरकत की दुआ करती हूँ और इस वक्त आए खुदा बाप हम उन गमज़दा ख़ानदानों को भी नाम बनाम तेरे सामने रखते हैं। आए खुदा तेरी मिन्नत करती हूँ कि तू हर एक को आए खुदा जो इस वक्त दुखी है, परेशानी में है, आए खुदा तकलीफ में है, आए बाप तेरा इत्मीनान आए खुदा बाप तुझसे मांग लेती हूँ। एक एक ख़ानदान पर आए खुदा तेरा इत्मीनान ठहर जाए, तेरी तसल्ली और तेरी तशफ़ी आए खुदा उन ख़ानदानों के साथ हो जिनके अजीज़ों को खुदा बाप तूने अपने पास बुला लिया। बाप तेरी मिन्नत करती हूँ कि तू उनकी मदद कर, हम सब की मदद कर खुदावंद, ताकि हम तेरी मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा दें, तेरी मर्ज़ी को आए खुदावंद खुदा कबूल करें। जो गैप आए खुदावंद हमारे अजीज़ों की वजह से हमारे ख़ानदानों में आ जाता है, तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, तेरा प्यार, तेरी मोहब्बत और तेरी शफ़क़त भी खुदावंद उसे भर देती है। बाप मैं तेरा शुक्र करती हूँ आए खुदावंद उन लोगों के लिए जो आए खुदावंद अभी रास्ते में है, बाप उनको सलामती से इस इबादत गाह में लाना। आए बाप तेरी मिन्नत करती हूँ बीमारों के लिए भी जो आए खुदावंद बीमार हैं। आए खुदावंद हम एक रूह होकर सारी कलीसिया आए खुदावंद मिलकर उसे तेरे हजूर में उठाते हैं और तेरी मिन्नत करते हैं खुदावंद, अपना हाथ बढ़ाकर उन सब को आए खुदावंद खुदा शिफा बख्श दे। आए खुदावंद तो आज सुबह अपने खादम के वसीला से खुदा अपने कलाम को नाजिल फरमा कर आए खुदावंद अपने लोगों
शिफा बख्श दे, तसल्ली और इत्मीनान बख्श दे। ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और दिलानी नाम की खातिर से, आमीन। यशायाह नबी का सहीफ़ा 43वां बाब, चैप्टर 43 वर्स 18 to 22, 18वीं आयत से 22वीं आयत, सफ़ा नंबर 695 जो बाइबल आपके सामने पड़ी है, सफ़ा नंबर 695, 695। यशायाह 43वां बाब, 18वीं आयत से 22वीं आयत। मिस्टर सैमुअल प्रेज इस कलाम के हिस्से की तिलावत हमारे लिए करेंगे। आज का दूसरा विर्द फिलिपियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त, 3रा बाब, 6ठी आयत से 14वीं आयत। लिज़बत आप बेटा ये हवाला हमारे लिए तिलावत करें। मिस लिज़बत, सफ़ा नंबर 191, फिलिपियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ये ख़त है, 3रा बाब, 6ठी आयत से 14वीं आयत। फिर हम गीत गाएंगे। खुदा तुझको दे बरकतें बेबहा, तुझे रखे महफूज व खुरम सदा, गीत नंबर 280 होगा। फिर हम इंजील मुक़द्दस की तिलावत सुनेंगे। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, 12वां बाब, पहली आयत से 8वीं आयत, सफ़ा नंबर 96। पादरी नेल्सन ये पैसेज हमारे लिए पढ़ेंगे। ये तीनों हवाले आज सो मेरी और आपकी नसीहत के लिए हैं। ये यशायाह 43वां बाब, 18वीं आयत से 22वीं आयत, फिलिपियों 3रा बाब, 6ठी आयत से 14वीं आयत, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, 12वां बाब, पहली आयत से 8वीं आयत। मेरे हाथ में एक शादी की पुकार है। तरक्की और अमन के लिए खेल का आलमी दिन मनाया जा रहा है और हमारे शहर में भी आज मैच है, जिसकी वजह से बिशप साहब को बड़ी रास्ते में प्रॉब्लम हुई है। आने में रास्ते बंद कर देते हैं, अवाम को मुश्किलात में डाल देते हैं। हम दुआ करते हैं कि खुदावंद अमन, सुलह और सलामती हमारे मुल्क में रखे और हमारा मुल्क तरक्की करे। 7 अप्रैल आलमी यौम सेहत है। कौन सा दिन है? आलमी तौर पे यौम। तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखा करें, खाया पिया करें। जो कमाते हैं ना, अपने ऊपर भी इन्वेस्ट किया करें और दूसरों पे इन्वेस्ट करते रहते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखें, खाएं पिए, एंजॉय किया करें। कहने लगे वो नहीं कमाते रहे हैं, किसी बुरे वक्त लिए इकट्ठा कर रहे हैं। वो आपको क्या पता बुरा वक्त आना है। और जब आप ये सोचते हैं फिर बुरा वक्त आ जाता है। अपनी ज़िंदगी पे, अपनी सेहत पे पैसा खर्च किया करें जो आप कमाते हैं। खुदा आप सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अगला इतवार पाम संडे, कौन सा? देखो देखो कोई कैसा जलवा मसीह। ये हम जुलूस की सूरत में बाहर जाएंगे, वहाँ से फिर खुदा के घर में दाखिल होंगे, खुशखबरी देंगे। ठीक है? अगला इतवार पाम संडे, जिसे हम खजूरों का इतवार कहते हैं। सुशील सल्तनत और हुरब की तरफ से नौजवान बच्चों को ये नसीहत है कि आप इबादत में आया करें। जब घर से बाहर बच्चे चले जाते हैं फिर बड़ा वो मिस करते हैं इस इबादत को, अपनी इबादत को, अपने प्रोग्रामों को, ख़ानदान के लोगों को। मुश्किल होता है बड़ा। तो ये जितने नौजवान बैठे हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, पेरेंट्स की इज़्ज़त करें, एहतराम करें, चर्च के लिए वक्त निकालें। इन इबादत को जो खुदा आपकी ज़िंदगी में देता है आएँ, सीखें, ताकि आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आए, आपके किरदार में, आपके अफकार में, सोचों में और आपकी गुफ्तार में, गुफ्तगू में। जब तक आप खुदा उनके घर में नहीं आते, खुदा के कलाम को नहीं सुनते, तब तक आपकी ज़िंदगी में, आपके किरदार में, आपकी गुफ्तगू में, आपकी सोच में तब्दीली नहीं आ सकती। अब जब आप चर्च आए हैं तो सारी बाइबल्स आपने देखी हैं, इनके कवर लगे हुए हैं। जिन बच्चों ने ये मेहनत की है, नुसरत, विरसा तो अब ऊपर संडे स्कूल में है। ये मेरे 2 जवान है, अल्टर बॉय खड़े हो भाई, ये रात को आके ये काम करते रहे हैं। बाइबलें जितने आपके सामने पड़ी हैं, इनके लिए तालियां बजाएं, खुदा का शुक्र अदा करें इन बच्चों के लिए। थैंक यू। बैठें जी। ये बच्चे जब खुदा के घर की खिदमत करते हैं
तो फिर खुदा ने सरफराजी देता है। फिर आप कहते हो पादी साहब इन्होंने बच्चों को बहुत अगे कर देने, भाई जो काम करेगा वो अगे आएगा, वो खा आपका बच्चा है या मेरा है या इनका है या किसी का भी क्यों नहीं, काम करें। बगैर काम करने के जो जंप लगाते हैं ना जी, वो मुश्किल हो जाता है हमारे लिए भी। खिदमत करें खुदा के घर की, खुदा आपको सरफराजी अता करेगा। आज हदिया इकट्ठा करने के लिए सरीना और मिसेज एंथनी आप दोनों नीचे से लेंगे, इंतज़ामिया आपकी मदद करेगी, ऊपर वो दूसरों को भेजेंगे। फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूँगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उससे नावाकिफ़ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सेरा में नदियाँ जारी करूँगा। जंगली जानवर, गीदड़ और शुतुरमुर्ग मेरी ताज़ीम करेंगे, क्योंकि मैं बियाबान में पानी और सेहरा में नदियाँ जारी करूँगा, ताकि मेरे लोगों के लिए यानी मेरे बरगज़ीदों के पीने के लिए हों। मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हम्द करें। तो भी या याकूब, तूने मुझे ना पुकारा, बल्कि या इसराइल, तू मुझसे तंग आ गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आमीन। कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, जोश के एतबार से कलीसिया का सताने वाला, शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से बेऐब था, लेकिन जितनी चीज़ें मेरे नफ़ा की थी उन्हीं को मैंने मसीह की खातर नुकसान समझ लिया है, बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह यसू की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीज़ों को नुकसान समझता हूँ, जिसकी खातर मैंने सब चीज़ों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूँ, ताकि मसीह को हासिल करूँ और उसमें पाया जाऊँ, ना अपनी उस रास्तबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है, बल्कि उस रास्तबाजी के साथ जो मसीह पर ईमान लाने के सबब से है और खुदा की तरफ से ईमान पर मिलती है। और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मुशाहबत पैदा करूं, ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जे तक पहुंचूं। ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूं, बल्कि उस चीज़ के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूँ जिसके लिए मसीह यसू ने मुझे पकड़ा था। ऐ भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूँ, बल्कि सिर्फ़ ये करता हूँ कि जो चीज़ें पीछे रह गईं उनको भूलकर आगे की चीज़ों की तरफ बढ़ा हुआ निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ, ताकि उस इनाम को हासिल करूँ जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यसू में ऊपर बुलाया है। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।
फिर यसू फसह से 6 रोज़ पहले बैतनिया में आया, जहाँ लाजर था जिसे यसू ने मुर्दों में से जलाया था। वहाँ उन्होंने उसके वास्ते शाम का खाना तैयार किया और मर्था खिदमत करती थी, मगर लाजर उनमें से था जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे। फिर मरियम ने जटामासी का आधा सिर खालिस और बेशकीमत इत्र लेकर यसू के पाँव पर डाला और अपने बालों से उसके पाँव पूंछे, और घर इत्र की खुशबू से महक गया। मगर उसके शागिर्दों में से एक शख्स यहूदा अस्करियोती, जो उसे पकड़वाने को था, कहने लगा, ये इत्र तो 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों ना दिया गया। उसने ये इसलिए ना कहा कि उसको गरीबों की फ़िक्र थी, बल्कि इसलिए कि चोर था, और चूँकि उसके पास उनकी थैली रहती थी, उनमें जो कुछ पड़ता वो निकाल लेता था। बस यसू ने कहा, उसे ये इत्र मेरे दफन के दिन के लिए रखने दे, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास ना रहूँगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनून नहीं बल्कि मौजूद, उसका और बाप का एक ही जो है, उसके वसीला से कुछ चीज़ें बनी, वो हम आदमियों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया, और उसकी कुदरत से हमारी मरी से जन्म हुआ और इंसान बना, और उसके अहद में हमारे लिए मसलूबी हुआ, उससे उठाया और दफन हुआ, और तीसरे दिन बाप मनुष्यों के बावजूद जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और आपकी दाहिनी तरफ बैठा है, जो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए चलाने वाला है। उसकी सरमन खतरा होगी और हम ईमान रखते हैं बिल्कुल उस पर जो खुदावंद और जिंदगी बख्शने वाला है। वो बाप के बेटे से सादे है, उसकी बाप और बेटे के साथ दस्ते शुद्ध नहीं होती है। उन्होंने भी अपनी जुबानी बोला, मैं एक आम मुस्लिम की सेवा ईमान करता हूँ, मैं जो किस्मत का जो गुलामों की माफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ, और उनको की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार रखता हूँ। आमीन। बिशप मनो रमल शाह, हमने उनसे दरख्वास्त की कि वो आएँ और खुदा का कलाम आज हमारे साथ शेयर करें। सेक्रेटरी साहब, आप हम सब की तरफ से, पूरी कलीसिया की तरफ से फूलों के बुक्के लाएँ, बिशप साहब को पेश करें मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, और हम दुआ गो हैं कि खुदावंद बिशप साहब को दराज़ी उम्र दे, सेहत और तंदुरुस्ती दे, और आज का दिन उनके लिए भी और हमारे लिए भी बरकत का बाइस बने। जी सेक्रेटरी साहब आ जाए।
जैसे तो अपने शागिर्दों के बीच में था वैसे ही हमारे दरमियान हाजिर हो। आदर और रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम सब पर जाहिर कर आइए उसके वसीले से हम सबको इस रोटी और इस बैग की भी तकदीस कर, ताकि हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से आई यीशु एक ही रूह में बाप के पास हम सब की रिसाई होती है। खुदावन तुम्हारे साथ हो, आपके रूह के साथ भी रहे। अपने दिल आल में बाला पर लगाओ। हम अपने खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हमको फ़र्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदावन मुकद्दस पाक कादिर मुतलक और अज़ली खुदा, इस वास्ते फरिश्तों, मुकर्रर फरिश्तों और कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हम्द व तज़ीम करते हैं और हमेशा यूँ तेरी सताइश करते हैं। कद्दूस कद्दूस रब फ़ौज, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से ममूर है। ऐ खुदावंद ताला, तेरा ही जलाल हो। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आया है और आने वाला भी है। आने वाला पर होशना। वाकई कदूस, वाकई मुबारक है तू, आए आसमानी बाप, तू जिसने अपनी उस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़िदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नज़र चढ़ाकर कुल जहाँ के गुनाहों के लिए एक पूरी, कामिल और काफ़ी कुर्बानी और नज़र मुआफ़ कर दिया। हम उसके दुख और मौत तेरे सामने याद करते हैं। तू उसकी कुर्बानी याद करके हम पर और हमारे सारे टूटे हुए रिश्तों पर, हमारी कलीसियों पर, हमारे ख़ानदानी हालात पर, मुल्की हालात पर और हमारे ईमान की कमज़ोरी, इन सब बातों में इल्तिजा है कि तू अपना रहम कर और हमें अपनी नई पहचान दे, ताकि हम तेरी उस हकीकत को जानें जो कि मसीहा ने हम पर ज़ाहिर की, कि तेरी मर्ज़ी हमारी मर्ज़ी एक नई गठा हो जो कि हमारे लिए, हमारी इंसानियत के लिए एक नया सफ़र हो। हम यहाँ की सारी कलीसिया के लिए, पादरी साहब, उनकी सारी खिदमत के लिए, उनके साथियों के लिए और जो तेरे लोग तेरे जिस्म का इस जगह पर हिस्सा है, उन सब के लिए दुआ। और अपनी पूरी कलीसिया पर रहम कर, उसी के वसीले से जिसने हमसे फरमाया कि जब तक मैं फिर ना आऊँ तुम ऐसे ही करते रहो। जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद उसने प्याला लिया और शुक्र करके उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की मुआफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। आमीन। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत को याद करते हैं, हम तेरे जी उठने का इकरार करते हैं, हम तेरी दूसरी आमद का इंतज़ार करते हैं। ऐ मसीह, तेरा ही जलाल हो।
अब हम अपनी ज़ाती दुआएं, इल्तिजाएं, उम्मीदें खुदावंद यीशु मसीह की लपेट में देते हुए उसकी सिखलाई हुई दुआ में शामिल हों। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे और हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिर हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। आए खुदा के बर्रे तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। हम पर आए खुदा के बर्रे तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। हम पर आए खुदा के बर्रे तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। अपना इत्मीनान बख्श। पास आओ, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून को लो जो कि तुम्हारे वास्ते दिए गए, और ईमान के साथ उसको अपने दिल में कबूल करो। आमीन। इस बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावंद ने बतौर अपना फ़र्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सैर किया है, और हमें गुनाहों की मुआफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा दिया है। हम उन बख्शिशों के लिए जो बयान से बाहर हैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं, और अपने आप को अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हजूर नज़र गुजरानते हैं, ताकि पाक और ज़िंदा कुर्बानी हो जो हमारी माकूल इबादत है। हमें फ़ज़ल बख्श ताकि हम इस जहान के हम शक्ल ना बने, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं, और यूँ तेरी नेक और कामिल मर्ज़ी सीखें, और इस जहान में इसी तरह तेरी फरमाबरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब कष्टों समेत खुशी मनाएं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जो तेरे और रूह कुद्स के साथ वाहिद खुदा अब्दुल अबाद जीता और सल्तनत करता है। आमीन। हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और ताकत अब्दुल अबाद हमारे खुदा की हो। आमीन। बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत पे महफूज रखे, और कादर मुतले खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह की बरकत आप सब पर हो, आपके ख़ानदानों पर हो, आपकी ज़िंदगी की सारी रोज़गार और ज़िंदगी की सारी जिम्मेदारियों पर हो, और आपके ईमान और उसकी गवाही के लिए आज से लेकर हमेशा आप सबके साथ रहे। आमीन। आमीन। जमात बैठ जाए।